Okay, so guys, today we will be starting with another very interesting chapter, which is known as propagation of radio wave. Okay, that means this chapter says that in this chapter we will learn that how the radio wave propagates from transmission to the receivers. Okay, so yesterday we have seen that what is the radio wave, what is the speed of radio wave, उसकी classification basically क्या होती है, like crest, trough, amplitude, frequency, wavelength. We have seen all these things. ठीक है, we have seen how to find frequency when the wavelength is given. We have seen when the how to find wavelength when the frequency is given. So basically those are exam questions. So today we will be learning about how these radio waves propagates. ठीक है, और ये propagate कैसे करती हैं one from one point to another. Okay, so the first thing is traveling of radio wave away from the transmitter. Now what is the transmitter? Suppose this is my pen. Transmitter is, for example, it is transmitting a radio wave. Okay, if it is transmitting, then this is the transmitter. And if this my calculator is a receiver, then the radio wave has been received by this calculator. Okay, so दो type के we have a devices. One is the transmitter and other one is the receiver. Okay, now there are certain factors on which the propagation of a radio wave depends. अब रेडियो वेव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ट्रैवल तो करती है, बट इसके साथ ही साथ जब ट्रैवलिंग के साथ साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम्स भी आती है. जैसे कि जब हम घर से बाहर निकलते हैं, सो वी आर गोइंग टू आवर ऑफिस, सो वी कैन सी मेनी लाइक रोड्स पे देयर आर पॉट होल्स, देयर आर वाटर क्लॉगिंग. ठीक है, देयर इज ट्रैफिक. ठीक है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं व्हेन वी स्टेप आउट. So similarly, when the radio waves step out from the transmitter, there are such factors affecting the propagation of radio wave. Okay, so the first factor is attenuation. Attenuation क्या होती है? Attenuation is the loss of signal strength in a radio wave as it travels outward from the transmitter. ठीक है, जैसे ही वो ट्रांसमीटर से बाहर जाएगी, उसकी सिग्नल की जो स्ट्रेंथ होती है, दैट कीप्स ऑन रिड्यूसिंग. ठीक है, नाउ देयर आर अदर टू ऑब्जेक्ट्स या फिर अदर टू एस्पेक्ट्स विच अफेक्ट्स द एटीन्यूएशन. एटीन्यूएशन क्या था? सिग्नल की स्ट्रेंथ को लूज होना. अब वो लूज किस टाइप से होती है? तो द फर्स्ट टाइप इज द एब्जॉर्प्शन एंड द सेकेंड वन इज द इनवर्स स्क्वायर लॉ. जो एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन इज एनर्जी. दैट मीन्स द एनर्जी ऑफ अ रेडियो वेव इज एब्जॉर्ब्ड एंड scattered by the molecules of air, water vapor, dust particles, droplets, vegetation, etc. on the surface of earth. ठीक है, जैसे ही वो निकलेगी, तो वी नो दैट रेडियो वेव अर्थ पे ट्रैवल करती है, एंड ऑन द अर्थ वी हैव वाटर पार्टिकल्स, वी हैव डस्ट पार्टिकल्स. ठीक है, एंड वी हैव वाटर वेपर्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो इन सारी चीजों की वजह से द एनर्जी ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द रेडियो वेव इफेक्ट्स, ठीक है, रिड्यूस हो जाती है. सेकेंड वन इज द इनवर्स स्क्वायर लॉ. यार बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ना, इनवर्स स्क्वायर लॉ, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है. ठीक है, so please mark it up. Inverse square law says as you go away from the transmitter, the signal strength decreases. It is proportional to the inverse of the square of the range. मतलब जितनी ही ज्यादा रेंज होगी, उतना ही ज्यादा सिग्नल की स्ट्रेंथ लूज होती जाएगी. एज सिंपल एज दैट. ठीक है, रेंज कम होगी तो सिग्नल की स्ट्रेंथ कम लूज होगी, रेंज ज्यादा होगी तो सिग्नल की लॉस ऑफ स्ट्रेंथ ज्यादा होगी. ठीक है, so it says that the atmospheric attenuation is greatest at higher frequencies. ये याद रखो, these are exam points. Please mark it up. एग्जाम में पूछते हैं. Attenuation is atmospheric attenuation is greatest with higher frequencies. जितनी ही ज्यादा frequency होगी, उतनी ही ज्यादा loss of strength होगी सिग्नल में. Surface attenuation is greatest at high frequencies. Same चीज. Ionospheric refraction is greatest in low frequencies. ठीक है, so these are 3 points. Mark it up. So the third part, sorry, second part is the power. First part क्या था? First was attenuation, first factor, and the second factor is the power. So increase in सर out सरफेस एटेन्यूएशन क्या होता है?
सरफेस एट्यूनेशन का मतलब है दैट इफ दिस इज द अर्थ सरफेस एंड हियर इज माय ट्रांसमीटर एंड हियर इज द रिसीवर फॉर एग्जांपल. So this radio wave will travel like this, ठीक है, through the surface of Earth. Now on the surface of Earth there are so many things, water vapor, dust particles and so on and so forth. तो surface of Earth से जब wave travel करेगी उसमें जो attenuation होता है उसको हम बोलते हैं surface attenuation. ठीक है. Okay, next thing, let's see what is the next thing. It says power. Increase in output power of a transmitter will increase the range. ठीक है, अगर आप रेंज बढ़ानी है तो आपको पावर को इंक्रीज करनी पड़ेगी. ओके. हाँ श्री बताओ. फिर एटमॉस्फेरिक एटेन्यूएशन और सरफेस एटेन्यूएशन में फर्क क्या है? ठीक है, देखो, एटमॉस्फेयर में मैट में हमने क्या पढ़ा था, देयर आर वेरियस लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर. आयनोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है. उसके बाद सरफेस मतलब अर्थ की सरफेस से जो भी वेव ट्रैवल करेगी हम उसकी बात कर रहे हैं. लेकिन एटमॉस्फेरिक एटेन्यूएशन में क्या होगा, वो सरफेस से भी ट्रैवल करेगी, वो आयनोस्फेयर से भी रिफ्रैक्ट करती है. सो डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर पे हम जाते हैं. अब ये वहां तक कैसे जाएगी यार, ऑब्वियसली हायर द फ्रीक्वेंसी मोर इज द रेंज. ठीक है, हायर द फ्रीक्वेंसी मोर इज द एटीन्यूएशन. तो इट इज कोरिलेटेड. ठीक है श्री. यस सर। चलो बढ़िया. नेक्स्ट, टू डबल द रेंज ऑफ अ रेडियो ट्रांसमीटर वुड रिक्वायर टू गिव द पावर ऑफ 4 टाइम्स. एग्जाम क्वेश्चन है, इसे मार्क कर लेना. पावर का सेकंड वाला पॉइंट. अगर आपको रेंज डबल करनी है आपको पावर 4 टाइम्स करनी पड़ेगी. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी. इनके बीच का डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स इज फॉर एग्जाम्पल 100 nautical miles. And at A we have a transmitter. We have a transmitter at A. Now this transmitter has to transmit the wave from A to B. ठीक है. ये जो ट्रांसमीटर था इसकी पावर वाज फॉर एग्जांपल 20 किलोवाट आवर. Okay, 20 kilowatt hour. Now let's suppose I have to transmit the power to Charlie with the same transmitter, and distance from Bravo to Charlie is again 100 nautical miles. Okay, understood? Are you getting? So हमने क्या किया? We are doubling the range. Range अगर हमें डबल करनी है, so we must multiply it by 4. That means 20 multiplied by 4. So my power would be how much? 80 किलोवाट आवर. 80। तो जब आप 80 किलोवाट आवर से पावर को इंक्रीज करोगे आपकी रेंज डबल हो जाएगी. ऐसा नहीं है कि डबल रेंज करना है तो पावर भी डबल करना है. दिस इज नॉट द फैक्ट. ठीक है. टू इंक्रीज द रेंज बाय ट्वाइस यू हैव टू इंक्रीज द पावर बाय 4 टाइम्स. प्लीज नोट इट डाउन, एग्जाम में एक्चुअली ये पूछते हैं. ठीक है. चलो लेट्स मूव अहेड. दिस इज द फॉर्मूला. अगेन एग्जाम क्वेश्चन. बेसिकली जब रेडियो का पोर्शन ज्यादा आता है ना एग्जाम में तो ये क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं. ओके. प्लस ये जो फर्स्ट के 2 चैप्टर्स है ऑफ रेडियो वेव, ठीक है, ये टिप बता रहा हूं मैं. ऑफ रेडियो नेविगेशन फर्स्ट 2 चैप्टर्स, बेसिक्स ऑफ रेडियो वेव एंड प्रोपगेशन ऑफ रेडियो वेव आर वेरी इंपॉर्टेंट इन योर आरटी, फॉर योर आरटी एग्जामिनेशंस. वेरी. पूरा आरटी का पार्ट 2 एज ऑफ नाउ जब डब्ल्यूपीसी लेता है तो मैक्सिमम 80% जो क्वेश्चंस होते हैं उनके वो इन्हीं 2 चैप्टर्स की वजह से होता है. सारा कुछ. सी पे रेंज कितनी होगी, अगर रेंज को डबल करना है तो पावर कितना करना पड़ेगा, स्ट्रेंथ कैसे लूज होती है. ठीक है. सो दीज ऑल आर क्वेश्चंस दैट दे आर आस्किंग इन आरटी एग्जाम. ठीक है. नाउ इफ यू वांट टू ट्रिपल द रेंज, पावर को 9 टाइम्स. इफ यू वांट टू क्वाड्रुपल द रेंज मतलब 4 अगर टाइम्स आपको रेंज करना है तो पावर को 16 टाइम्स इंक्रीज करना पड़ेगा. नाउ सी के ऊपर वी हैव अ फॉर्मूला. ठीक है. इफ यू वांट टू ट्रैवल, इफ यू वांट द रेडियो वेव टू ट्रैवल टू सी तो उसका वी हैव दिस फॉर्मूला. रेडियो वेव को लैंड पर ट्रैवल करना है तो वी हैव दिस वन. नाउ व्हाट डज इट सीज?
रेंज इज इक्वल्स टू 3 × √पावर। एंड लैंड पे क्या है, रेंज इज इक्वल्स टू 2 √पावर। अब ये 3 and 2 का फंडा क्या है? सो गाइस, इट इज प्योरली लॉजिकल वेज, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू रेंज किसकी ज्यादा होनी चाहिए? रेडियो वेव में सी की रेंज ज्यादा होनी चाहिए व्हेन इट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम सी, और व्हेन इट इज ट्रैवलिंग अबाउट लैंड? कौन सी रेंज ज्यादा होनी चाहिए रेडियो वेव की? सर सी में, क्योंकि वहाँ पे कोई इंटरफेरेंस या फिर कोई अब्जॉर्प्शन नहीं होगा इतना ज़्यादा। या फिर वहाँ पे, लेकिन सर वहाँ पे अब्जॉर्प्शन ज़्यादा भी तो हो सकता है, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो वहाँ पे एयर पार्टिकल ज़्यादा होंगे। देखो, अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो वो सी पे सिर्फ नहीं होगा, वो टेम्परेचर लैंड पे भी होगा। आई बात समझ? ऑन द अदर हैंड, अगर हम टेम्परेचर का फैक्ट कंसीडर करें, तो सी पे क्या गर्म हो रहा है? वाटर की लेयर, अपर मोस्ट लेयर ऑफ वाटर। बट लैंड पे क्या गर्म हो रहा है? पूरा का पूरा लैंड, जो कि नॉकटर्नल कूलिंग होती है रात में। लैंड से आप अपनी हीट भी रिलीज करेगा लैंड अपनी, तो लैंड पे डबल इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, प्लस लैंड पे ह्यूमंस भी रहते हैं जो कि सबसे ज्यादा डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं। डस्ट पार्टिकल्स, वाटर वेपर्स, पॉल्यूशन, स्मोक, हर एक चीज। तो ऑल दीज फैक्टर्स प्लस योर बिल्डिंग्स एंड टेरेन्स ऑल्सो, ठीक है, वो भी रेंज को इफेक्ट करती है ऑन लैंड। दैट इज द रीजन सी के ऊपर रेंज ज्यादा होती है एंड लैंड के ऊपर रेंज कम होती है। ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज फेडिंग। Fading. Next factor that affects the radio range, radio waves, is the fading. Fading is basically if two signals meet in antiphase, that it will cancel out each other, known as fading. It prevents reflection. We use to install an antenna at highest point. अब fading क्या होता है? See, fading and attenuation. Attenuation में क्या है? देखो, it is the loss of signal strength when it is coming outward from the transmitter. In fading, we have two signals moving in opposite direction, basically you can say. ठीक है, when two signals move in opposite direction या फिर when two signals meet, तो उसके अंदर जब वो कोलाइड करते हैं तो उसमें सब लॉस ऑफ एनर्जी होती है। उस लॉस ऑफ एनर्जी को हम बोलते हैं फेडिंग। ठीक है। नेक्स्ट इज रिसीवर सेंसिटिविटी। सो रिसीवर सेंसिटिविटी सेज दैट फॉर एग्जांपल, सर हाँ फेडिंग फेडिंग वाला शॉर्ट में वापस बोलना, नहीं समझ आया। ठीक है, फेडिंग वाला शॉर्ट में इज, दिस इज माय ट्रांसमीटर, this is my, it's my transmitter 1 and this is my transmitter 2। अब ट्रांसमीटर 1 ने एक रेंज को, रेडियो वेव को एमिट किया, ट्रांसमीटर 2 ने भी रेडियो वेव को एमिट किया। अब ये जो दोनों रेडियो वेव्स आपस में कोलाइड करती हैं, ठीक है, तो जब वो कोलाइड करेंगी उनका सम पार्ट या फिर फ्यू स्ट्रेंथ, सम स्ट्रेंथ ऑफ दीज रेडियो वेव्स विल लूज, कुछ पार्ट इनका लूज हो जाएगा। तो उसी कंसेप्ट को हम कंसीडर करते हैं फेडिंग के अंदर। ठीक है, या फिर सर ओवरलैप ये करेंगी। दोनों ट्रांसमीटर्स जो है वो रिसीवर में जा रहे हैं। देखो, ये जो ट्रांसमीटर है ना, ये ट्रांसमीटर 1, इसकी फ्रीक्वेंसी इज डिफरेंट, सेकंड वाले ट्रांसमीटर की फ्रीक्वेंसी इज डिफरेंट। ठीक है, सेम फ्रीक्वेंसी नहीं है। अब कोई हो सकता है कम्युनिकेशन के लिए यूज हो रहा हो, कोई हो सकता है आपका नेविगेशन के लिए यूज हो रहा हो। ठीक है, बिकॉज डिफरेंट, हमने कल देखा था ना जो हमारा फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम था, कितनी सारी फ्रीक्वेंसी, सबके अलग अलग यूसेज। तो जब इन ये आपस में कोलाइड करती हैं, टकराती हैं, ओवरलैप होती हैं, बेसिकली व्हेन दे टच ईच अदर, इनमें कुछ सिग्नल का स्ट्रेंथ लॉस हो अच्छा, ओके, जाता है। गॉट इट। Okay, so next is receiver sensitivity. So अब again in above example receiver sensitivity, जैसे कि हमने रेंज वाला एग्जांपल देखा था, this is A, this is B। नाउ यार, फॉर एग्जांपल, मैं मोबाइल फोन का एग्जांपल लेता हूँ, बहुत इजीली समझ में आएगा। आपके पास एक मोबाइल फोन है नॉर्मल, ठीक है, which supports the charging of 20, basically 20 mAh, 20 watt mAh के वो पावर सपोर्ट करेगा। अब अगर आप उसमें 150 वॉट की पावर आउटपुट दोगे, तो क्या वो एक्सेप्ट करेगा आपका फोन? वाई? कैपेसिटी नहीं है उसको उसकी अब्जॉर्ब करने की। कैपेसिटी नहीं है, एग्जैक्टली।
तो जो आपके फोन की कैपेसिटी है वो मैक्सिमम 20 ही एक्सेप्ट करेगा, रिमेनिंग 130 कंप्लीटली वेस्ट हो जाएगा, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा बिकॉज उसको ऐसा डिजाइन ही नहीं किया गया। सिमिलरली हमारे रेडियो वेव के साथ भी सेम फंक्शन होता है विच इज नोन एज रिसीवर सेंसिटिविटी। If a transmitter is transmitting the wave on at the power of 100 kilowatt hour, but B की रिसीवर कैपेसिटी कितनी है 50 किलोवाट आवर, तो भाई B तो 50 ही लेगा ना, और 100 में से 50 जो होता है वो वेस्ट हो रहा है। तो दिस कंसेप्ट इज नोन एज रिसीवर सेंसिटिविटी। तो जितनी सेंसिटिविटी है हमें उतनी ही पावर को ट्रांसमिट करना चाहिए बिकॉज बाकी की जो रिमेनिंग पावर है वो कंप्लीट वेस्ट हो रही है। ठीक है, इट इज वेस्टिंग, दैट इज द रीजन दिस इज नोन एज रिसीवर सेंसिटिविटी। ठीक है, नेक्स्ट इज स्टैटिक इंटरफेरेंस। स्टैटिक मींस हम सभी जानते हैं यार, इट इज देयर आर सम इलेक्ट्रिकल चार्जेस। ठीक है, सो स्टैटिक इंटरफेरेंस इज अनदर कंसेप्ट which is very prominent in radio navigation या फिर radio waves. What happens? CB cloud के बारे में we all have studied. It is the most hazardous cloud in aviation. बहुत thunderstorm होते हैं, lightning होती है। तो जब CB में lightning होती है ना, तो radio wave को वो lightning इफेक्ट करती है because radio wave is also इट इज ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसमें इलेक्ट्रिकल चार्जेस भी हैं, पार्टिकल्स हैं। सेम इलेक्ट्रिकल पार्टिकल जब थंडरस्टॉर्म भी एमिट करेगा तो फिर उसमें भी हैम्पर होता है हमारा स्ट्रेंथ का रेडियो वेव में। ठीक है, सो कॉज बाय स्टैटिक डिस्चार्जेस इन एटमॉस्फेयर जनरेटेड ड्यू टू वेदर जियोग्राफिकल एक्टिविटी। बेसिकली जो वॉल्केनो इरप्ट होता है उसमें भी इलेक्ट्रिकल पार्टिकल रहते हैं। ठीक है, वॉल्केनिक इरप्शन से भी ये हैम्पर होता है, ज्योग्राफिकल एक्टिविटी और ह्यूमन एक्टिविटी। सेकेंड इज मेनली ड्यू टू थंडरस्टॉर्म एंड रेन, इट क्रिएट्स नॉइस, sometimes you can hear a crackle sound as well, that is the worst at lower frequency. ठीक है, सो स्टैटिक इंटरफेरेंस एग्जाम पर्सपेक्टिव से आप लिख लो किसकी वजह से होता है, एटमॉस्फेयर, वेदर, ज्योग्राफिकल एक्टिविटीज एंड ह्यूमन एक्टिविटी। अच्छा, ह्यूमन एक्टिविटी कैसे हैम्पर कर सकती है स्टैटिक चार्जेस को, एनी आइडिया? गैस करो, ऐसी रैंडम गैस। क्रैकर्स, टावर, सिग्नल्स। सिग्नल टावर तो वो रेडियो वेव ही हम दे रहे हैं ना। अगर रेडियो वेव हम एमिट कर रहे हैं, जैसे कि वेदर से क्या होता है, थंडरस्टॉर्म से वो हैम्पर हो रहा है, तो ह्यूमन ऐसा क्या जनरेट कर रहा है जिससे वो हैम्पर? रेडियो एक्टिव मटीरियल्स का नाम सुना है? ठीक है, वो हो गया। सेकेंड थिंग, जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं या फिर कोई मिसाइल का एक्सपेरिमेंट करते हैं किसी जगह पे, रेडियो एक्टिव मटीरियल्स उससे एमिट होते हैं। ठीक है, जब भी ये क्या एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटी, नेचुरल एक्टिविटी तो नहीं है, ये हमने डिस्टर्ब करा नेचर को, दैट इज द रीजन इससे रेडियो वेव भी डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज द डायरेक्टिविटी। अब डायरेक्टिविटी, एक डाउट है सर। हाँ हाँ बताओ। सर जैसे वो जो रिसीवर सेंसिटिविटी है वो उसमें अगर जैसे हमने 1000 किलोवाट का एक मतलब हमने रेडियो वेव भेजी है और वो उतना कैपेबल नहीं है, तो उसने अगर जितना वो कैपेबल है उतना अब्जॉर्ब करेगा, उसका मतलब क्या है? जैसे मैंने एक मैसेज भेजा है उसकी, अगर उसका पावर इतना है, मतलब जो रेडियो वेव से मैंने मैसेज भेजा है तो उसका अगर उसने आधा अब्जॉर्ब किया है तो उसका मतलब क्या है? मतलब जैसे वो मैसेज आधा पहुंचा है या फिर क्या है? देखो, इसीलिए मैंने क्या कहा था, मैसेज आजा पहुंचा है, हमने एग्जांपल लिया था मोबाइल फोन का, तो बाकी का जो चार्ज हो रहा है ना अर्पित, वो वेस्ट हो रहा है। आई बात समझ? तो जब वो चार्ज वेस्ट हो रहा है, तो व्हाट वी हैव डिसाइडेड कि भाई अगर ये सेल फोन फॉर एग्जांपल सो एंड सो वॉट को सपोर्ट करेगा, तो भाई मैं उसी वॉट का चार्जर इसके लिए डेवलप करूं। अगर ज्यादा वॉट का करा तो जो एनर्जी है वो कंप्लीटली वेस्ट होगी। तो इसीलिए हमने सिमिलर स्पेसिफिकेशंस के चार्जर, या फिर बेसिकली हमारे एग्जांपल में जितना वो रिसीव कर सकता है उतना ही डिजाइन कर रहा है। ठीक है, तो उसी को तो रिसीवर सेंसिटिविटी हो कहेंगे। अब टावर 20 किलोवाट आवर को रिसीव कर सकता है, तो भाई मैं 100 किलोवाट आवर की पावर उसमें क्यों दूं? बाकी 80 तो वेस्ट हो जाएगा ना। तो मैं सिर्फ कितनी दूंगा, 20 दूंगा, ऑब्वियसली, ये रीजन।
ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट कंसेप्ट हम देखते हैं, दैट इज डायरेक्टिविटी। अब डायरेक्टिविटी कंसेप्ट एक ऐसा है विच इज वेरी वेरी यूजफुल। नाउ इन ओल्डर डेज हमने रेडियो वेव तो वी हैव जनरेटेड, हमने जनरेट कर ली, हमने रिसीवर तक पहुंचा भी दी रेडियो वेव को, बट उसमें एक प्रॉब्लम थी। मैसेज जा रहा था, उसमें प्रॉब्लम ये थी कि उसमें बहुत सारे लॉसेस हो रहे थे रेडियो वेव में। देखो, दिस इज माई ट्रांसमीटर, ठीक है, एंड दिस इज माई रिसीवर, ये रिसीवर है। अब ये जो ट्रांसमीटर है ना, रेडियो वेव तो देखो इन ऑल डायरेक्शन जाती है, आपको पता है, लाइट की तरह ऑल डायरेक्शन जा रही है, लेकिन रिसीवर कहाँ पे? भाई रिसीवर को तो सिर्फ ये पर्पल वाली में एक बना देता हूँ रे, सिर्फ यही वाली रे चाहिए, बाकी जो रेडियो वेव है वो सारी वेस्ट हो रही है सारी। तो हमने क्या करा, हमने एक ऐसा एंटीना डेवलप करा जो कि सिर्फ और सिर्फ रिसीवर की डायरेक्शन में ही पॉइंट हो, और बाकी जितने भी सिग्नल्स हैं वो सारों को एलिमिनेट कर दे। ठीक है, तो जब हमने ऐसा करा तो ये जितने भी पार्टिकल्स हो रहे थे वेस्ट वाले, उसने सबको एलिमिनेट कर दिया, एंड सिर्फ वन डायरेक्शन में ही उसने अपनी रेडियो वेव को एमिट करा। तो दिस कंसेप्ट इज नोन एज डायरेक्टिविटी। ठीक है, बट इसका एक छोटा सा ड्रॉबैक और है। ड्रॉबैक ये है कि जब हम डायरेक्टिविटी में एक बेसिकली हेडिंग पे एक रूट पे हम वेव को एमिट करेंगे, तो इसमें छोटे छोटे से वेस्ट इसमें भी होगा, इसमें भी लोब्स निकलेंगे, बट वेरी माइन्यूट। पहले तो यार हमें 20 वॉट चाहिए थी, हम 100 वॉट एमिट कर रहे थे, बाकी 80 आर गेटिंग वेस्टेड। तो हमने क्या करा, हमने 20 की जगह 30 कर दिया, क्योंकि अगर 10 वेस्ट भी हुआ तो 20 का तो सिग्नल जा रहा है हमारे पास, बाकी 70 पूरा सेव हो रहा है। ठीक है, इट इज जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। ठीक है, तो दिस इज द डायरेक्टिविटी, जहां रिसीवर हो सिर्फ उसी डायरेक्शन में रेडियो वेव को एमिट करेंगे। सो दिस कंसेप्ट इज डायरेक्टिविटी। ठीक है, नाउ वी हैव टाइप्स ऑफ प्रोपगेशन। हमारे फैक्टर्स अफेक्टिंग खत्म। सो दीज आर टोटल 6 फैक्टर्स which affects the propagation of radio wave. ठीक है, now we have type of propagation. The first type is basically non-ionospheric and the other one is ionospheric. आपको पता है यार, आइनोस्फेरिक एंड नॉन आइनोस्फेरिक हमारा एटमॉस्फेयर की लेयर है। सो जो रेडियो वेव होती है, या तो वो रेडियो वेव आइनोस्फेयर को क्रॉस कर जाती है, बेसिकली इट ट्रेवल्स थ्रू द आइनोस्फेयर इनटू द स्काई, या फिर वो रेडियो वेव आइनोस्फेयर से टच होके दोबारा से रिफ्लेक्ट कर जाती है हमारे ग्राउंड पे। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अर्थ सरफेस एंड इससे बना देता हूँ, ये आइनोस्फेयर है। ठीक है, दिस इज द आइनोस्फेयर। नाउ इफ आई एम जनरेटिंग अ रेडियो वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है या फिर पावर ज्यादा है, वॉट एवर, अभी हम उसकी भी देखेंगे डिटेल्स। अगर दिस इज माई ट्रांसमीटर, तो एक रेडियो वेव तो भाई आइनोस्फेयर को पास थ्रू कर गई। ठीक है, सेकेंड वेव जिसकी बेसिकली फ्रीक्वेंसी कम है, वो ऊपर तो जाएगी बट इट रिफ्लेक्ट्स बैक फ्रॉम द आइनोस्फेयर। सेकेंड वेव होगी, सेकेंड वेव भी ऐसे जाएगी, वो भी रिफ्लेक्ट बैक करेगी आइनोस्फेयर से। ठीक है, नाउ ये जो पास थ्रू वेव हुई है ये वाली, ये इसको हम बोलते हैं नॉ इसको बोलते हैं आइनोस्फेरिक वेव्स, because it is passing through the ionosphere, and those waves which are not passing through the ionosphere are known as non-ionospheric. So in ionospheric we have sky waves, we have satellites basically which are using these frequencies, and we have ducting. अब what is the ducting? What is the concept of ducting? मैं भी बताता हूँ आपको। ठीक है, नॉन आइनोस्फेरिक में we have surface wave, we have space waves. ठीक है, सो सरफेस वेव क्या होगा, दे ट्रैवल थ्रू द सरफेस। ठीक है, सैटेलाइट में क्या होता है, सैटेलाइट आपको पता है दे आर वेरी हाई फ्रॉम द सरफेस। सो उनमें जो भी हमारे फ्रीक्वेंसीज यूज होती है, दैट इज अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी एंड सुपर हाई फ्रीक्वेंसी। ओके, ठीक है, अभी इसकी और डिटेल देखेंगे आगे आने वाले टॉपिक्स में। नेक्स्ट थिंग, we'll talk about ground wave or surface wave propagation. If you see the diagram, this is the antenna which is generating a radio wave. ठीक है, रेडियो वेव के बाद यू कैन सी द माउंटेन्स ओवर हियर, ये माउंटेन्स है।
अब जब रेडियो वेव ऐसे ट्रैवल करती है एंड इट स्ट्राइक्स फ्रॉम द माउंटेन, तो माउंटेन के पीछे वाला जो एरिया है, बेसिकली हम उसे शेडो एरिया बोलते हैं, तो शेडो एरिया में रेडियो वेव नहीं जा पाती। इट कैन नॉट पास थ्रू द माउंटेन, ठीक है, माउंटेन से पास थोड़ी ना होगी, क्रॉस थोड़ी करेगी। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ सरफेस वेव। सरफेस वेव में ये वाला एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है। और अगर यहाँ पे रिसीवर है तो भाई रिसीवर को वेव ही नहीं मिलेगी। तो जब वेव नहीं मिलेगी सरफेस से, हम क्या करेंगे, हम उसकी थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे ताकि वो वेव आयनोस्फीयर से जाए, रिफ्लेक्ट हो और रिसीवर तक पहुंच जाए। ठीक है, ओके। ये तो हमने देख लिया था फॉर्मूला। हाँ, ये एक पॉइंट और है, बेसिकली एग्जाम में भी ये पूछा जाता है। एट्यूनेशन इज मोर ओवर लैंड, वी हैव ऑलरेडी सीन, देन सी। ओके, now for maximum ground wave range, use low frequency for maximum diffraction and least attenuation। यार इसका रीजन, एनीवन, इसका रीजन क्या है, लो फ्रीक्वेंसी क्यों? सर जैसे कि पीछे देखा, लो फ्रीक्वेंसी में का जो अटेन्यूएशन ज्यादा होता है वो आयनोस्फीयर में होता है। तो अगर ग्राउंड वेव के लिए चाहिए तो लो फ्रीक्वेंसी वुड बी ग्रेट, क्योंकि ग्राउंड पे आयनोस्फीयर नहीं है तो अटेन्यूएशन कम होगा। और डिफ्रैक्शन, क्योंकि आयनोस्फीयर से लग के जैसे लो फ्रीक्वेंसी बाउंस बैक करता है तो वो ग्राउंड पे ही आएगा, तो यस, उससे रेंज भी बढ़ जाता है। पर बहुत बढ़िया एक्सप्लेन किया आपने, ठीक है, अमेजिंग। सो जब हम लोअर फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं, वी यूज इट फॉर बेटर रेंज, बिकॉज जितनी ही ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही ज्यादा एटीन्यूएशन होगी, उतना ही ज्यादा लॉस ऑफ स्ट्रेंथ होगा। हमने ऊपर देख लिया था, ठीक है। सो जब हम, मैं बता रहा हूँ आरटी का क्वेश्चन जो डब्ल्यूपीसी वाला पूछता है, वो आपसे पूछेंगे कि फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस कम्युनिकेशन which frequency do we use in communication? So the answer is frequency. low frequency. High, But culture very high से, culture में देखो देखो देखो, high frequency long communications हाँ के मैं लिए। बताता हूँ, देखो वैसे नॉर्मली वी यूज VHF फॉर कम्युनिकेशंस, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। बट व्हाट हैपन जब आपको ओवर द सीज ट्रांसमिशंस करने हैं, ओवर द सी, तो हम उससे एक पॉइंट ड्रॉप कर देते हैं विच इज हाई फ्रीक्वेंसी। मेरा लो का मतलब कहने का था VHF से लो, नॉट लो फ्रीक्वेंसी, ठीक है। VHF से लो जब हम करेंगे इट इज हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। बेसिकली उसमें पूछेंगे आरटी में। ओके, नाउ ड्रॉबैक्स ऑफ ट्रांसमिटिंग पावर एट लो फ्रीक्वेंसी, लार्जर एंटीना और लार्जर साइज, स्टैटिक इंटरफेरेंस इज मोर। हर चीज का कोई ना कोई ड्रॉबैक जरूर है, ठीक है। सो सरफेस वेव हैज मैक्सिमम रेंज कंपेयर टू अदर वेव्स बिकॉज द रीजन इज फ्रीक्वेंसी उसकी लो रहती है। ओके, सरफेस में जैसे आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दोगे, वो उसकी वो पैराबोलिक पाथ बनाने लगेगी, मतलब आयनोस्फीयर से रिफ्रैक्ट करेगी वो बैक, ठीक है। ओके, सरफेस वेव प्रोपगेशन देखते हैं गाइस, ये प्लीज नोट इट डाउन। आई गारंटी वन क्वेश्चन फ्रॉम दिस इन द एग्जाम, गारंटीड। सो बेसिकली क्या होगा, आपको रिसीवर की हाइट दी जाएगी, आपको ट्रांसमीटर की हाइट दी जाएगी, ठीक है। हाइट ऑफ, यहाँ रिसीवर है, प्लीज करेक्ट इट, इट इज RX receiver. So this is the formula 1.23 multiplied by height of transmitter plus height of receiver. Okay, receiver for example, this is the aeroplane. Suppose it is cruising at 30,000 feet, and जो हमारा transmitter है उसकी height for example is 50 feet. ठीक है, so we will put the values in this height of transmitter under root of 50 plus height of receiver under root of 30,000. When you will solve it, you will get the range, that range कितनी होगी हमारी, ठीक है। और रिसीवर हो गया। ट्रोपोस्फेयर, ठीक है, इसका पार्ट तो है नहीं। चलो आइनोस्फेयर यार, अगेन इंपॉर्टेंट पार्ट।
एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछते हैं. So basically in ionosphere we have three reflective layers D, E and F. ठीक है, यहाँ पे देखो we have three layers D, E and F. So basically you can see the numbers here. D75 means from 0 to 75 kilometer above the surface of Earth we can see D layer, and from surface of the Earth to 125 kilometers हमें मिलता है E layer, and from surface to 2 to 5 kilometer हमें मिलता है F layer. Okay, so basically what happens, हमें ये तीन टाइप की लेयर्स एग्जाम में पूछते हैं. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेयर्स आर देयर, कभी कभी उनकी हाइट भी पूछ लेते हैं. ठीक है, नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, D layer disappears at night usually. D layers disappears at night. ये एग्जाम में पूछते हैं. So the reason for disappearing is what happens. See, over here we have the sun. ये sun है. Now it is continuously transmitting the light. वो power continuously transmit करता है. So क्या होगा, सबसे ऊपर वाली लेयर कौन सी होगी, F. So जो light sun से आती है that will encounter the F layer first. ठीक है, let's say F layer के पास 100 particles ट्रांसमिट हुए. ठीक है, 100 particles ड्यूरिंग द डे टाइम. अब F के साथ साथ आपके पास F1 भी है. ठीक है, रिमेनिंग पार्टिकल्स, अब आपने देखा होगा दैट while you cook something in the stove, तो जो हैंडल होता है ना, तो अगर आप पैन पे कुछ कुक करते हो तो हैंडल भी कभी कभी वार्म हो जाता है. कभी आपने फील करा होगा. द रीजन इज दे आर कनेक्टेड. ठीक है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होती है, ये सब फिनोमेना फिजिक्स के हम पढ़ रखे हैं. तो जब ये कनेक्टेड है तो इनमें भी ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होती है. सो एफ लेयर पे, F2 पे अगर 100 पार्टिकल्स हैं तो F1 पे इट विल ट्रांसफर 90 पार्टिकल्स. अब कनेक्टेड ई लेयर भी है, ई लेयर पे 80 पार्टिकल्स आ जाएंगे. ई के बाद डी लेयर है, डी के ऊपर लेट्स से 60 पार्टिकल्स आ गए कनेक्टेड. ठीक है, जब सबसे कम पार्टिकल्स डी लेयर के पास हैं, सो व्हाट हैपेंस एट नाइट, द कंसेप्ट ऑफ नॉक्टर्नल कूलिंग अपीयर्स when the earth releases its heat in the night. So when the earth releases its heat, the first layer which is disappearing is the D layer, because इसके पास ऑलरेडी कम पार्टिकल्स हैं. ठीक है, ये ज्यादा हीटेड नहीं है, तो जब अर्थ ठंडा होगा ना तो ये जो 60 पार्टिकल्स है ये भी जीरो हो जाएंगे. 80 वाले पार्टिकल्स विल बिकम 20, 90 वाले पार्टिकल्स विल बिकम 40. अप्रोक्सीमेटली आई एम गिविंग एन आइडिया ताकि आपको समझ में आ जाए. ठीक है, सो बेसिकली जो डी लेयर होता है ना वो पूरा जीरो हो जाता है, मतलब एट नाइट डी लेयर डिसअपियर्स. एग्जाम. सर डाउट है, डी लेयर जो है वो सरफेस लेयर के एकदम क्लोज होती है, हाँ, तो वो सबसे ज्यादा गर्म होनी चाहिए ना. नहीं वो क्यों गर्म होगी, रे सन, सबसे ज्यादा तो हीट सन से एमिट हो रही है ना. ओके. हाँ, जब सबसे ज्यादा सन से एमिट होगी तो सबसे क्लोज सन के पास कौन सी लेयर है, एफ लेयर. तो सबसे ज्यादा जो हीट एब्जॉर्ब करता है वो एफ लेयर है. उसके बाद जो हीट एब्जॉर्ब करेगा वो ई लेयर होता है, एंड द लास्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट होता है डी में. डी के बाद जो बची कुची हीट होती है बरखा, वो अर्थ के पास आती है. ठीक है, आई बात समझ. तो इतना सारा फिल्टर्ड प्रोसेस है बेसिकली, आप इसे ये समझो. ठीक है, अब जो फिल्टर प्रोसेस है, रात में क्या होगा, अर्थ की भी प्रॉपर्टी है, रात में इट रिलीजेस द हीट. जब अर्थ रिलीज करेगा तो डी के पास ऑलरेडी कम हीट थी, तो डी भी अपनी हीट रिलीज कर देगा अर्थ के साथ. तो डी विल डिसअपियर एट नाइट. ई की, एफ की एनर्जी जरूर कम होगी बट दे डोंट डिसअपियर. जब तक वो ठंडे होने लगेंगे ना, दोबारा से दिन हो जाएगा, अगेन सूरज आ जाएगा, सन आ जाएगा, एंड इट विल अगेन पास द एनर्जी. ठीक है, सो दिस इज हाउ दीज लेयर्स ट्रांसफर द हीट, एंड एग्जाम क्वेश्चन आई हैव टोल्ड यू. ठीक है यार, दिस पार्ट, स्काई वेव प्रोपगेशन पार्ट is very very important. I guarantee 2 marks from this one. ठीक है, 2 marks. अब ये होता क्या है, सी,
This blue zone you can see is the ionosphere. This is the ionosphere. This is the transmitter. Here we have the receiver. Okay. Now, when the transmitter is transmitting the range, basically radio frequency, radio wave, so first wave क्या होगी? It will pass through the ionosphere. Second wave obviously उसकी थोड़ी सी जब कम frequency होगी, like this, more lower frequency like this, lower frequency करते करते ionosphere पे टच होगी and the wave will reflect back. Another wave ऐसे जनरेट होगी जो कि reflect back. More wave reflect back like this. ठीक है. Now what happens? This is the diagram. सबसे हाई फ्रीक्वेंसी वाली जो वेव होगी वो बिल्कुल आयनोस्फीयर को पास थ्रू. सबसे लोअर फ्रीक्वेंसी वाली रेंज वी विल बी यूजिंग एट सरफेस रेंज. सरफेस रेंज पे हम यूज करेंगे. नाउ व्हाट हैपेंस? सरफेस रेंज पे जब हम यूज करेंगे वी हैव सीन देयर आर मोर लाइक एटीन्यूएशन प्रॉपर्टी होती है, सिग्नल स्ट्रेंथ लूज होती जाती है. सो आफ्टर सम टाइम सिग्नल की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा लूज हो जाती है, लॉस हो जाती है, जो कि एक पॉइंट पे वो खत्म हो जाती है उसकी पावर. तो वो जो रेंज है सरफेस वेव की, जो रेडियो वेव है, वो ट्रांसमीटर तक पहुंच ही नहीं पाती. तो पहुंचने से पहले ही वो डेड हो जाती है. ओके. सो दिस part from where the surface wave has been died, from here till the receiver is known as dead space. Dead space ये इंपॉर्टेंट है. दो ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं बेसिकली. डेड स्पेस क्या होता है एंड स्किप डिस्टेंस क्या होता है. ये दो हैं. फर्स्ट इज डेड स्पेस. सेकेंड thing is when the first returning sky wave. First returning sky wave क्या है? देखो, एक वेव तो ये है कि जो रिटर्न नहीं हुई है ये. This wave is also not returned. This wave is also not returned. First returning wave is this one. ये गई ionosphere से टच हुआ and then it will reflect back to Earth's surface. When it will reflect back, so the distance from the transmitter till the first returning sky wave, from the transmitter to receiver मत लिखना यहाँ पे. It is not receiver, it is first reflected sky wave. ठीक है. फर्स्ट रिफ्लेक्टेड स्काई वेव, इसको हम बोलते हैं स्किप डिस्टेंस. ओके. नाउ द एंगल बिटवीन द फर्स्ट रेडियो वेव and the first returning sky wave, these are two different things. First wave and the first returning sky wave is known as critical angle. This angle, red one, ये एंगल को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल. सो सिर्फ तीन क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं. क्रिटिकल एंगल, स्किप डिस्टेंस एंड डेड स्पेस. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये डायग्राम के साथ. ठीक है. प्लीज इसे अच्छे से देख लेना. सर एक बार ये शॉर्ट में फिर से बता दीजिए. चलो ठीक है. देखो, ट्रांसमीटर है, वो एनर्जी को ट्रांसमिट कर रहा है, रेडियो वेव्स को ट्रांसमिट कर रहा है. जिसकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी वो रेडियो वेव आइनोस्फीयर से पास थ्रू कर जाएगी. ठीक है. सो धीरे धीरे जब हम फ्रीक्वेंसी कम करेंगे तो एक ऐसी वेव आती है जो कि आइनोस्फीयर पे जाती तो है बट वो क्रॉस नहीं कर पाती, वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है. ठीक है. सो दिस वेव, रिफ्लेक्ट बैक वाली जो वेव होती है, इसे हम बोलते हैं फर्स्ट रिटर्निंग स्काई वेव. इसके बाद और भी वेव्स होती हैं, वो भी जाती रहती हैं, बट फर्स्ट कौन सी है? फर्स्ट वन इज दिस वेव. So we will only consider the first wave. सेकेंड पार्ट होता है हमारा सरफेस वेव. सरफेस वेव की बेसिकली बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी है, वेरी लो फ्रीक्वेंसी. ठीक है. वेरी लो जब फ्रीक्वेंसी है तो भाई एटीन्यूएशन उतना ही ज्यादा होगा. ठीक है. लॉस ऑफ सिग्नल स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी. तो जब सिग्नल स्ट्रेंथ लूज होती है उसकी, तो वो रिसीवर तक पहुंच नहीं पाती, वो रास्ते में ही खत्म हो जाती है. तो जहां पे वो खत्म हुई है वहां से लेके रिसीवर का जो लिमिट है उसको हम बोलते हैं डेड स्पेस. ठीक है. ट्रांसमीटर जब ट्रांसमिट करता है फर्स्ट रिटर्निंग स्काई वेव, सो फर्स्ट रिटर्निंग स्काई वेव व्हेन इट रिफ्लेक्ट्स बैक टू अर्थ,
तो जहां जिस पॉइंट पे वो अर्थ से टच हुई है वो वाला पॉइंट से लेकर ट्रांसमीटर का जो पॉइंट है उसको हम बोलते हैं स्किप डिस्टेंस. Critical angle is the first emitting wave of the transmitter and the first reflecting wave of the transmitter is critical angle. So basically these are the definitions. Please mark it up. These are very important. Important है, प्लीज इसको मार्क कर लो आप लोग, ठीक है. नेक्स्ट थिंग, लेट्स मूव ऑन. लाइट इफेक्ट तो वी हैव ऑलरेडी सीन, ठीक है. सुपर रिफ्रैक्शन, चलो सुपर रिफ्रैक्शन भी देख लेते हैं. Super refraction is the wave which bends towards the Earth's surface, hence loss of range increases. Range का loss. Significant at frequencies above than 30 megahertz, that is VHF, and above. Radio wave experience greater refraction, that is they are bending towards the Earth's surface, जो कि ionosphere से bend होती है, we have seen. More than normal conditions, giving notable increases in the line of sight range as much as 40% above than usual. Now, what is line of sight? एक concept हमारे पास और आता है, ठीक है. Line of sight is this is my transmitter, ठीक है. This is the earth and here is the aircraft, ठीक है. अब जब मैं डायरेक्टिविटी वाला फंक्शन भी विल अप्लाई ओवर हियर, सो मुझे ना एक रेडियो वेव एमिट करना है जो कि डायरेक्ट एयरक्राफ्ट को जाना चाहिए, ओके. बट व्हाट हैपेंस इन बिटवीन, हियर इज द माउंटेन. अब जब माउंटेन है बीच में तो भाई रेडियो वेव एमिट तो होगी बट एयरक्राफ्ट तक नहीं पहुंच पाएंगे बिकॉज देयर इज अ माउंटेन इन बिटवीन. सो इन दिस केस लाइन ऑफ साइट विल नॉट फंक्शन. लाइन ऑफ साइट वाला इसमें कैंसिल हो जाता है फंक्शन. लाइन ऑफ साइट सिर्फ कब होगा, जब कोई भी वेव डायरेक्टली किसी रिसीवर पे पहुंच जाए डायरेक्ट, उसे हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट. सिंगल लाइन में जाना चाहिए, ठीक है. सर इसकी कोई फॉर्मूला भी होती है लाइन ऑफ साइट की? नहीं, लाइन ऑफ साइट की फॉर्मूला, रेंज की फॉर्मूला है हमारे पास. ओके. लाइन ऑफ साइट इज जस्ट अ फिनोमेना, ठीक है. ओके, सो सब रिफ्रैक्शन. Some refraction causes a reduction in the normal reflection, a refraction giving a decrease in the line of sight range up to 20%. Line of sight 20% reduce होगी and super refraction में 40. बस इतना ही डिफरेंस आप याद रखो, एग्जाम में से ज्यादा पूछेंगे भी नहीं, ठीक है. Here is the diagram, ठीक है. बेसिकली इसमें हमने डिफरेंशिएट कर रखा है सुपर रिफ्रैक्शन एंड सब रिफ्रैक्शन में. Bends toward the earth surface and bends away from the earth surface, sub refraction. Range increase in super refraction, range decreases in sub refraction. ठीक है, इसके डिफरेंस आप पढ़ लोगे, आपको समझ आ जाएंगे, ओके. Anything else? So here are chapter number 2 completes. Any doubt guys in this? नो सर. कैसा लगा ये वाला चैप्टर? इट इज बढ़िया. इंटरेस्टिंग. इसके क्वेश्चंस आते हैं रेंज के? रेंज के क्वेश्चन, तो जब डीएमई पढ़ेंगे ना, डिस्टेंस मेजरिंग इक्विपमेंट, उसमें भी ये क्वेश्चन आएगा एंड रेंज के भी. सर किसी में फॉर्मूला ऐसे देखी थी मैंने 1.25, तो इज इट हाँ, 1.3 या 1.2? देखो 1.25 भी गिवन है इन फ्यू बुक्स. ऑक्सफोर्ड में 1 डेसिमल 2 भी गिवन, ठीक है. तो बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस आपको मिलेगा. जैसे सीपीपीएनआर के क्वेश्चन में 2-3 नॉटिकल माइल्स का डिफरेंस, तो सिमिलरली इसमें भी वही डिफरेंस मिलेगा व्हिच कैन बी, इट इज 1 ओके. डेसिमल, ठीक है. तो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर. प्लीज इसको, दो चैप्टर्स रेडियो नेविगेशन के बहुत अच्छे से पढ़ो बिकॉज दे विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट इन आरटी. बहुत अच्छे से, मतलब कोई भी कंसेप्ट इसमें से मिस नहीं होना चाहिए. आपके आरटी क्लियर कराने का एक ही ये एक तरीका है. एंड रेडियो नेविगेशन बेसिकली बहुत पूछा जाता है, ठीक है. हाँ बरखा बताइए.
सर जैसे कि जनरल नैव में आप जब करवाते थे तो उसके बाद मैं नोट्स में खुद की वही लिखती थी, तो अब रेडियो में वैसा करना है कि किस तरह से करना है? खुद की नोट्स बनाए या इसमें से डायरेक्ट रीड करें? देखो, रेडियो में बिल्कुल भी बनाने की रिक्वायरमेंट, बेसिकली इंस्ट्रूमेंट भी हमने ऑलमोस्ट पीडीएफ कंप्लीट कर ही लिया सिमिलरली, एवरीथिंग हैज बीन गिवन। जर्नल ऐप पे भी काम चल रहा है, तो जब वो हो जाएगी कंप्लीट, आई विल शेयर इट विद यू ऑल। सो ये नोट्स आप कंप्लीट पढ़ो, एक डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करो, कोई भी बुक का कोई भी क्वेश्चन आप करोगे, कुछ मिस नहीं होने वाला, इट इज कंप्लीट। ओके ओके। ओके, सो प्लीज इसको अच्छे से करना, एंड देन टुमारो विल स्टार्ट विद अनदर चैप्टर। ओके, सर ये पीडीएफ भेज दीजिए। सर इसके क्वेश्चन सेकंड चैप्टर के करने सेकंड, हैं? हाँ हाँ, आरके वाली के आप कर सकते हो, ऑक्सफोर्ड के कर सकते हो, थ्योरी हो रहेगा मोस्ट पार्ट, बट रेंज के हो सकता है आपको क्वेश्चन मिल जाए सेम फॉर्मूला यूज करके। ओके। क्या, हाँ अर्पित, मैं आपको ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा, शायद आपको नहीं कर पाया था, मैं भी करता हूँ। ओके, चलो, ओके। दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर द सेशन। एनीथिंग